Hey, hi everyone. Thank you for joining another episode of Primary Market Chatter. This is like our 11th episode. I was uh, counting today. हमने 11 episode कर लिए हैं अभी तक. So it's been a great start. Thank you so much for being with us. And what we do is for everyone's if someone's joining us for the first time, हम क्या करते हैं कि जो भी नेक्स्ट वीक के आईपीओज आ रहे होते हैं उनको रिव्यू करते हैं वेरी क्विकली, प्रोवाइड अ समरी इन द नेक्स्ट 10 minutes एंड वी नो कि अगले हफ्ते 13 या 14 आईपीओज आ रहे हैं. तो मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने आईपीओ हैं. देयर हैज बीन अ बराज ऑफ आईपीओज व्हिच इज हिटिंग अस. So with that, we thought we'll kind of break this up into two different sessions. हम दो सेशंस में करेंगे and that's why we wanted to do one on Friday ताकि हमें वीकेंड पे टाइम रह पाए और हम ट्राई करें कि वीकेंड पे करते हैं दूसरा वाला. Not committing anything, but I understand ये जो टाइम है ये most suited टाइम नहीं है. There are a lot of people who are at work. We understand that and are not able to catch up at this time. इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो ये इशू जो ये कंपनीज का हम रिव्यू करते हैं ये हम YouTube पे भी डालते हैं और उसके बाद उसको YouTube पे डालते हैं. सो इफ यू गाइज फील लाइक डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल. वहां पे आप एक एक करके कंपनीज का रिव्यू भी देख सकते हैं. मैंने अपना फर्स्ट कमेंट में YouTube चैनल पिन डाल दिया है और मैंने उसको स्पेस में पिन भी कर दिया है ताकि आप वो चैनल देख पाओगे. गो अहेड एंड फॉलो दिस. उसमें हम अपनी हर यूट्यूब जो स्पेस होती है ये वाली उसको रिकॉर्ड करके डालते हैं और वहां पे टैग्स भी डाल देते हैं ताकि आप वो स्पेसिफिक सिर्फ इशू का जो भी हाईलाइट है वो सुन पाओ. सो दैट्स व्हाट वी डू. बट हैविंग सेड दैट, वेरी हाईली वुड वांट टू इंट्रोड्यूस ऑन टुडेज पैनल. सो आज हम 7 कंपनीज स्टार्ट करने वाले हैं. 7 कंपनीज कवर करेंगे. हम 3 मेन बोर्ड कंपनीज कवर करेंगे और उसके बाद 4 एसएमई कंपनीज कवर करेंगे. सो सबसे पहले हम ऑर्डर इसमें चलेंगे कि क्योंकि 9th को 2 इश्यूज क्लोज हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम श्री तिरुपति बालाजी की बात करेंगे और माय मुद्रा एसएमई की बात करेंगे. उसके बाद जिसका सबको इंतजार है, बेसिक बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे 11th को और टॉलिंस टायर्स की बात करेंगे. ये दोनों मेन बोर्ड इशू है. उसके बाद 3 एसएमई इश्यूज आ रहे हैं, विजन इंफ्रा, शुभ श्री, आदित्य अल्ट्रा. इन 3 कंपनीज की बात करेंगे. So with that, maybe we'll get started. I know Rohit hasn't joined, but he'll be here any minute. In the meanwhile, maybe we'll start with Shri Tirupati Balaji. So Tanmay, do you want to go ahead and talk about Shri Tirupati Balaji? Yes, is my voice clear? Yes, it is. So Shri Tirupati Balaji Agro Trading Company Limited is engaged in the business of manufacturing and selling flexible intermediate bulk containers, also known as FIBC, and industrial packaging solutions like woven sacks, narrow fabric tapes, etc. So this company is basically raising 169 crore, out of which 122 crore is going to be fresh and rest 47 crore will be the OFS. In the fresh issue, the company is deleveraging their balance sheet by repaying the debt of 52 crore. Means out of this 52 crore, 30 crore is going to be from the parent company and the rest, the debt will be repaid from the subsidiaries. They have 3 different subsidiaries. So this company is also raising 24 crore for working capital requirements in both in the parent company and the subsidiaries, and the rest will go for the GCP. So this company basically has 5 manufacturing facilities which are in Indore, Madhya Pradesh, with a combined capacity of 50,000 tons per annum. So this capacity includes the subsidiaries capacity, and the parent company has the capacity of 26,000 tons. So I'll come to its financials. This company did a revenue of 475 crores and a PAT of 20.7 crores. In FY24, this company did a revenue of 540 crores and a PAT of 36 crores. So this company is coming at a market cap of 677 crores. If I can just request you to थोड़ा सा हिंदी में भी बात करोगे ताकि वो मिक्स एंड मैच अच्छा हो जाए. हाँ, अरे इतना बेसिक होने तो फिर हिंदी पे आ जाऊंगा मैं. Okay. So this company is coming at a market cap of 677 crores and the P at what it is coming, it is at 19x. तो अभी मैं जरा पीयर कंपैरिजन करूंगा इसका. तो इसका इन्होंने सबसे पहले इनका पीयर दिखाया है कमर्शियल बैग्स करके. तो वो 38 टाइम्स पे है. तो कोई बोलेगा कि यार बहुत महंगी है. मतलब दिस कंपनी इज एक्चुअली अ लार्जर पीयर ऑफ दिस कंपनी. मतलब इसका रीजन ऐसा है कि हाई पीस को क्यों मिला है. इनका बहुत बड़ा कैपेक्स आ रहा है. द सेम गोज विद देयर सेकंड पेयर एम्बे इंडस्ट्रीज. वो 23 टाइम्स पे, बट उनका कैपेक्स आ रहा है 25,000 टन का. मतलब जितने कंपनी का टोटल साइज है उससे आधा ये नया कैपेक्स ला रहे हैं. पुराना उनके पास और आई थिंक 35,000 अराउंड है. और जो तीसरी कंपनी इन्होंने दिखाई है ऋषि टेक्स करके, वो तो बहुत ही छोटी कंपनी है. मतलब 40-50 करोड़ का मार्केट कैप है. दैट्स नॉट अ कंपेरेबल. तो अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग्स पे जाओगे ना,
तो ये कमर्शियल बैग्स और एमबी ना फॉरवर्ड पे इससे सस्ते मिल रहे ना। तो ना इसके जो मार्जिन है ना वो सडनली इंक्रीज हो गए। आप देखोगे तो पहले दे वर अराउंड 4.5% और अभी अराउंड 7-8% है। तो इसके ना मैंने देखो रोड शो का मैंने इसका लाइव देखा, फिर मैंने दो ही इंटरव्यूज अवेलेबल है, दोनों देखे मैंने। मतलब मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि क्यों बढ़े। मतलब जो मैनेजमेंट ने बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने दो तीन चीजें बताई। पहला तो इन्होंने बताया कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हायर हो, इसकी वजह से हमारे एफिशिएंसीज बढ़ी। तो इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना एज ऑफ नाउ 89% है। मतलब मैं पांचों यूनिट का कंबाइंड बता रहा हूँ आपको। 89% कैपेसिटी पे है, जो अर्लियर इट वाज अराउंड आई थिंक 78%। और उन्होंने दूसरा रीजन बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है ना वो बेटर हुआ। तो इनका जो एफआईबीसी का बिजनेस है ना वो 68% ऑफ द रेवेन्यू था FY23, जो घट के 52% रहेगा। और इनका जो वुवन फैब्रिक का जो बिजनेस था ना वो 2% से 21% हो गया। बट वुवन फैब्रिक के बारे में ना प्रमोटर ने किसी भी इंटरव्यू में कुछ ज्यादा बताया नहीं, वो सिर्फ एफआईबीसी की बातें कर रहे हैं। तो मतलब प्रोडक्ट मिक्स की वजह से मार्जिन इतना बढ़ जाना थोड़ा सा ये। और मतलब बैलेंस शीट ऐसे बुरी नहीं है, अच्छी बैलेंस शीट है, थोड़ा बहुत ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल में है, बट ठीक है। ये कंपनी का 50% एक्सपोर्ट, 50% डोमेस्टिक है कंजम्पशन है। जो 2 साल पहले मिक्स बहुत अलग था। 2 साल पहले 90% वॉज आई थिंक एक्सपोर्ट और फिर 10% वॉज द डोमेस्टिक। सो दिस कंपनी इज सप्लाइंग टू 60 डिफरेंट कंट्रीज। तो मतलब था ये कंपनी का अगर मैं सब कुछ एक सेगमेंट में बताऊं ना, तो ये कंपनी में ना ऐसा इन्वेस्ट करने लायक ऐसा बहुत कुछ खासियत नहीं है। और 18x पे या 19x पे आपने को लगेगा कि सस्ता दिया है, बट ऑनेस्टली कुछ सस्ता नहीं। वो नॉर्मली उन्होंने प्राइस वैल्यूएशन पे दिया है। तो मेरा इसके ऊपर व्यू बहुत सिंपल है कि इसके ऊपर सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए जाना है, 20 to 30% लिस्टिंग गेंस के ऊपर जाना है। बाकी इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड एलएम यूनिस्टोन जो सरस्वती में था वही इधर भी है। सो मतलब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आई हैव कवर्ड दैट वेल इन द लास्ट पेज। तो मतलब सिंपल व्यू है इसमें, लिस्टिंग गेन के लिए लगाओ, लॉन्ग टर्म के पीछे मत जाओ। नॉर्मल सी कंपनी है और पैकेजिंग का कंपनी है। इन कंपनीज को ना वैल्यूएशन भी बहुत लो मिलता है। और देखो पोस्ट लिस्टिंग इसको खरीदने कोई नहीं आने वाला। तो ये पूरा रिटेलर ड्रिवन स्टॉक रहेगा और आई जनरली अवॉइड रिटेलर ड्रिवन स्टॉक। सो दैट्स माय व्यू ऑन इट। लिस्टिंग इनके लगना है, लॉन्ग टर्म के पीछे नहीं लगना है इसमें। गॉट इट। मैं भी कंपनी पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ी बल्क कॉर्प की याद आ रही थी, जो अभी एसएमई आई थी बल्क कॉर्प। इज दिस वेरी सिमिलर, प्रोबेबली बिगर पीयर ऑफ दैट? एंड आपने एंकल लिस्ट, मैंने देखा है इसकी तो एंकल लिस्ट है एटलीस्ट, ये ऐसा नहीं है कि इसमें एंकल लिस्ट नहीं है। सो डिड यू रीड तन्मय विथ रिस्पेक्ट टू द एंकल लिस्ट, हाउ इज द एंकल लिस्ट एक्सेट्रा? यस आई रेड। 6 नाम है, 6 के 6 नॉर्मल बहुत रेगुलर एसएमई के नाम है। कोई मतलब नई चीज नहीं, नॉर्मल बहुत नॉर्मल एसएमई एंकर बुक है उसमें। गॉट इट। सो दैट वाज अबाउट श्री तिरुपति बालाजी कंपनी। इसके बारे में कम ही टाइम स्पेंड करेंगे एंड मे बी श्री Yes, तिरुपति sir, I बालाजी will का। I will add one thing. I'll add one thing. So हाँ जी। इसकी जो सब्सिडरी ना दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट्स। ओके, श्री तिरुपति FIBC करके एक एसएमई स्टॉक है। आई थिंक 700-800 मार्केट कैप की वो कंपनी है। ये इसमें 51% नहीं 61% कुछ ओन कर दी है। बट वो स्टॉक आई थिंक 5 गुना हुआ है नीचे से। और ना उनका मैं कैपेसिटी देखूं तो मतलब वो उन्होंने सब्सिडरी क्यों बनाई है कि इनका जो FIBC का जो आई थिंक वुवन बैग्स का जो बिजनेस है ना और फूड ग्रेड बैग्स का जो बिजनेस है ना वो उसमें है। बट अब उसकी और इसकी कैपेसिटी ही अगर मैच करने जाओ ना तो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज दिखती है। मतलब ये इसकी सब्सिडरी है बट दोनों अपने अपने बुक्स में अलग अलग कैपेसिटीज दिखा रहे हैं। तो दैट वाज ऑल्सो पॉइंट कि मेरे को लगा कि ये कैसे हो सकता है। और मैंने चेक किया कि इनकी और दो सब्सिडरीज में भी वो जो फूड ग्रेड बैग्स थी वो अवेलेबल नहीं थी। और पेरेंट कंपनी लेवल में भी अलग FIBC बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे सेम कंपनीज है, सिर्फ पेरेंट सब्सिडरी अलग है और अलग कैपेसिटीज दिखा रही है। तो वो थोड़ा सा मेरे को एक पॉइंट लगा कि यार इस पे थोड़ा क्लैरिटी आना चाहिए। बट मुझे मिली नहीं वो क्लैरिटी। मैंने पढ़ा अच्छे से बट आई डिडंट गेट दैट। गॉट इट। इतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता है यार इन कंपनीज को। क्विकली स्क्रॉल थ्रू एंड मूव ऑन फ्रॉम व्हाट आई सीन। बट या, 9th को क्लोज हो रहा है राइट ये इशू। इसके बाद मे बी वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इशू। 9th को एक और एसएमई भी क्लोज हो रही है, उसकी भी बात कर लेते हैं। माई मुद्रा करके एक एसएमई आ रही है, वो बात कर लेते हैं। वेरी हाई लेवल समरी अगर मैं दे दूं तो कंपनी इज वर्स ऑफ देन मैक एंड नामो। तो अगर पैसा रिपीट नहीं हो सकता तो यू आर बेटर ऑफ अप्लाइंग इन मैक एंड नामो कंपेयर टू माई मुद्रा। बट अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी अराउंड 30 लाख शेयर ला रही है, 33 CR टाइप का रेस करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम द मार्केट एट 125 CR वैल्यूएशन।
और 9 तारीख को आईपीओ क्लोज हो रहा है। और कंपनी जो बेसिकली करती ये है कि कंपनी ना फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बैंक वगैरह होती है जो लोन देती है ना, जो आपके पास कई बार कॉल आता है लोन लेने के लिए, तो जो कंपनी कॉल करती है डीएसए होती है, जो वो ये कंपनी होती है। जो बेसिकली जैसे आपके पास कई बार कॉल आता है कि हम, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एग्जांपल, हम बजाज फाइनेंस से बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली बजाज फाइनेंस का कोई एम्प्लॉय डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहा होता है, बट उनका एक डीएसए होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या चैनल पार्टनर, वो कॉल कर रहा होता है। और उसके पास लिबर्टी होती है कि वो कभी बजाज फाइनेंस बेचे, कभी इंडसइंड बैंक बेचे, जो भी। सो दैट्स हाउ योर डीएसए वर्क, राइट? सो ये कंपनी बेसिकली इज अ डीएसए फॉर अ लॉट ऑफ बैंक्स एंड गिव्स लोन्स एंड इंश्योरेंस वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं। सो मैंने इतना पढ़ा उसके बाद मैंने कहा इसमें तो अप्लाई नहीं करेंगे कंपैरेटिवली, मेरे पास बहुत फोन आते हैं कंपैरेटिवली, एंड दिस इज लाइक माय रिवेंज इन अ वे। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी ना केवल डीएसए है, बट इट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ सब डीएसएज ऑन इट्स बुक्स। सो बेसिकली कंपनी के जो टोटल चैनल पार्टनर्स हैं, सब डीएसएस हैं, वो अराउंड 150 चैनल पार्टनर्स हैं। सो बेसिकली टॉप लेवल पे जो बैंक्स वगैरह होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, वो इतने सारे लोगों से बात नहीं कर सकती, राइट? सो वो एक दो मेन डीएसए हायर करती हैं और उनके नीचे फिर कई सारे सब डीएसए होते हैं जो कॉल करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, और उसमें फिर जो भी लोन वगैरह जाता है उसका कंपनी को कमीशन मिल जाता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, FY 24 में कंपनी ने 71 CR का पैड किया है, तो उसमें से 15 करोड़ जो है वो कंपनी ने खुद से किया है। और 55 CR टाइप का, 56 CR जो है वो सब डीएसए हैं बेसिकली, जो डायरेक्ट बैंक से जुड़े हुए नहीं है, उनके बीच में एक लेयर है। तो ये कंपनी माय मुद्रा एक लेयर है, वो 56 CR उनसे कर रहा है। और उसमें क्या होता है कि 15% कंपनी खुद रख लेती है, बाकी जो सब डीएसए ने लोन लिया है वो मार्जिन उसको दे देती है। सो इट्स अ वेरी वेरी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, आई फील, विथ वेरी लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड आर लिमिटेड, इज बिकॉज कि अभी गवर्नमेंट ने ना जैसे अपना यूपीआई होता है वैसे ही एक यूएलआई कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, विच इज एसेंशियली यूनिफाइड लोन इंटरफेस। तो जैसे ही लोन इंटरफेस अगर ये आ जाता है, एंड आई फील इट विल नॉट बी वेरी फार व्हेन यू विल बी एबल टू डू दैट। तो जैसे आप यूपीआई पे भी किसी भी कोड को स्कैन करके जीपे से भी पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो, वैसे ही आप कहीं से भी लोन ले पाओगे। आप देख पाओगे कि मेरे को लोन चाहिए, तो अगेन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एग्जांपल, बजाज फाइनेंस इतने पे दे रहा है, इंडसइंड इतने पे दे रहा है, एक्सिस बैंक इतने पे दे रहा है, एसबीआई इतने पे दे रहा है। सो व्हेन यू डू दैट, this company and existence of all such companies comes under question, right? So because of which I'm not very positive about this company in the long term. But अगर short term में बात करूं मैं, तो और short term में बात करूं तो कंपनी जो है बेसिकली अराउंड 8 करोड़ का पैट कमाया है इसने, अराउंड 71 CR का रेवेन्यू पे। सो अराउंड 10% पैट मार्जिन टाइप का ले जाती है, और कंपनी अराउंड 125 करोड़ पे आ रही है, तो उस हिसाब से अराउंड 15 के पीई पे आ रही है। और कंपनी ने जो अपने पीयर्स दिखाए हैं, वो अकीको ग्लोबल दिखाया है, वो भी 15 के पीई पे ही है। सो इन इटसेल्फ इट सीम्स लाइक द लिस्टिंग गेन्स एनीथिंग विल प्रोबेबली बी शॉर्ट टर्म, एंड द कंपनी विल स्ट्रगल इन द लॉन्ग टर्म, एब्सोल्युटली। इसके अलावा एक और चीज जैसे मैं देख रहा था, तो कंपनी के पास कई सारे पीनल चार्जेस भी कंपनी ने पे किए हैं। तो बेसिकली कई सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो डीएनडी किए हुए होते हैं, फिर भी कंपनी उन्हें कॉल कर देती है वगैरह, विच इज रेदर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसके चक्कर में भी कंपनी को बहुत ही छोटा अमाउंट था, 2.5 लाख रुपए का। बट ये कई सभी डीएसएस और सब डीएसएस इसका फॉलो नहीं करते हैं ये स्ट्रक्चर, उसकी वजह से उन्हें फाइन देते रहना पड़ता है। सो आई डोंट लाइक दैट इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ दैट। बट अगर मैं बात करूं, 30 करोड़ कंपनी रेस कर रही है, तो उसमें से 6 करोड़ जो है वो लोन चुकाना चाह रहे हैं, 6 करोड़ का ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। उसमें बात वही होगी कि वो यूएलआई पे जाएंगे वगैरह और उसके लिए करेंगे, बट हाउ डज दैट प्ले इज वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ। और उसके अलावा 7 करोड़ कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए रेस कर रही है। सो इन शॉर्ट टर्म growth looks much capped, like short term में कंपनी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, 15 के पीई पे आ रही है, और पीएस भी 15 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, प्लस फाइनेंशियल्स अभी इतना अच्छा ट्रेड वैसे भी कर नहीं रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक इट, यू कैन स्किप दिस वन इफ यू स्टिल हैव सम मनी, बिकॉज 9th को जॉब लगाओगे वो 11th को फ्री हो जाएगा। एंड comparatively I feel loss नहीं होना चाहिए unless the market change, so you can try your luck, but I don't feel anything great about this company. One last good thing about the company is that it's a HAME securities issue, so decent repute in the industry. But yeah, that was with respect to my mudra and my review of my mudra. So that we have finished our two
companies that we wanted to review on ending on 9th, and we'll start with the companies ending on 11th, and we'll probably start with the one which is the most awaited company, which is essentially Bajaj Housing Finance. But उससे पहले मैं just आपको एक और बार highlight कर दूं, if someone has joined us new and if you have missed any issue, आपने किसी company का issue join नहीं किया है, तो I'll put this up on YouTube as well. The link is in the pinned chat. पहले comment में भी और pinned chat में भी. और उसके अलावा अगर आपको कोई भी questions हो, especially with respect to My Mudra, what we covered, post them in the chat box. We'll take them up as well. And then I understand there are a lot of questions with respect to Bajaj. हम बजाज का भी कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बात कर पाए, बट दैट्स आवर रिव्यू विथ रिस्पेक्ट टू माय मुद्रा. हैविंग सेड दैट, अब हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ चलते हैं. सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जस्ट सेटिंग इट अप फॉर तन्मय. Although it doesn't need any setup, but it's a big issue. 6,000 करोड़ कंपनी रेस कर रही है, जिसमें से लगभग 3,000 करोड़ रुपए का ओएफएस है और 3,500 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू अपने बुक्स में डाल दिए ताकि वो लोन वगैरह जो देती है, हाउसिंग लोन, वो ज्यादा दे पाए उनसे. बट विद दैट, मे बी तन्मय, डू यू वांट टू टेक अप एंड टॉक अबाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस? यस, आवाज सही से आ रहा है मेरा? यस. So Bajaj Housing Finance Limited is India's second largest housing finance corporation with an AUM, asset under management, of 97,000 crore. The company is the fastest growing HFC with a CAGR of 29%. Bajaj Housing Finance Limited is India's largest non-deposit taking HFC. So इनके पोर्टफोलियो में बेसिकली 4 मेन चीजें हैं. पहला है होम लोन, सेकंड है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसको LAP भी बोलते हैं, थर्ड इज lease rental discounting, and third is developer financing. So this company is basically raising 60 crores, out of which 3,560 crore will be the fresh issue and 3,000 crore OFS will be done by Bajaj Finance. So they are raising the fresh issue to augment the future capital needs of the company. So the main I think pointer in this company is that their 87.5% of the AUM is to the salaried class. अगर product mix या फिर income level mix देखोगे तो दूसरी कंपनियों में अराउंड 60-40 रहता है. मतलब वो AUM बुक बढ़ाने के पीछे ज्यादा inclined होती है. This company is like, we will just largely cater to the salaried income class. So अब मैं ना इनकी सारे ये metrics पे आऊंगा. So the company has an AUM of 97,000 crores. It disbursed 45,000 crores in FY24. Revenue, they did 7,600 crores. They did PAT of 1,731 crores. Their NIM, net interest margin, was 4.1%, ROA of 2.3%, ROE of 14.3%. इस कंपनी में ना और एक खासियत ऐसी है कि lowest GNPAs and NNPAs in the industry, listed लो, unlisted लो, कोई भी साइज ले लो, इनका सबसे लोवेस्ट है. GNPA ग्रॉस एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज एट 0.28% एंड NNPA इज 0.11%. मतलब इससे अच्छी बुक क्वालिटी एंड एसेट क्वालिटी किसी की नहीं है इंडस्ट्री, मतलब आसपास भी नहीं है कोई इसके. इसका जो PCR है दैट इज अराउंड 59.4%, कैपिटल एडिक्वेसी 23.8%. सो दिस कंपनी इज कमिंग एट अ मार्केट कैप ऑफ 58,300 crores, व्हिच इज अ ह्यूज मार्केट कैप. इट इज मतलब ये कंपनी का जो NAV है ना 2024 का, दैट वाज 18.8 रुपीज पर शेयर. मतलब उसके हिसाब से ये 3.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ रही है. अभी जो इंडस्ट्री एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो है ना, दैट इज अराउंड 3x. मतलब जो भी इंडस्ट्री की इन्होंने टॉप 7 प्लेयर्स दिए, उनका करंट पे अगर आप निकलना चाहो तो 3 to 3.1x का आएगा. दिस कंपनी इज कमिंग एट ए 20% प्रीमियम टू द पियर्स. बट ये कंपनी का जो क्वालिटी है ना, ये बहुत अलग है. नाउ ये इंडिया में नंबर 2 है, तो वन विलास नंबर 1 कौन है? नंबर 1 इज LIC हाउसिंग फाइनेंस. उनका AUM 2.5 लाख करोड़ है. मतलब इनसे ये 2.5 गुनी बड़ी कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस. तो उनके अगर आप रेशियोज चेक करो ना तो बहुत ही मतलब खराब है. उनके NPAs भी बहुत ज्यादा है. उनके इंटरनल्स भी इतने खास नहीं है. उनके रिसेंटली आई थिंक थोड़े स्लिपेजेस भी हुए थे. तो इनका आप देखोगे ना तो इनका जो FY25 का एक्सपेक्टेड NAV है 22.3%, अराउंड 18% राइज है. तो उसके हिसाब से आई फील दिस कंपनी विल गेट अ प्राइस टू बुक ऑफ 5.5. नाउ इसका मैं थोड़ा बताऊंगा कि 5.5 क्यों, 5 to 5.5 के बीच इसका आना चाहिए. रीजन बीइंग, ये कंपनी का अगर आप ग्रोथ अगर कंपेयर करने जाओ तो पहली बात, जो दूसरा आता है इसके बाद, दैट आई थिंक दैट इज एप्टस आता है शायद,
Aptus आता है, that is it grows at 26% and that trades at around 4.1x के price to book पे. But considering the robust growth of this company and the company के मैनेजमेंट ने ना एक दो चीजें बताई जो आई फील जो इसको और मदद करना चाहिए फ्यूचर में. इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, ये सारे जो इनके डिफरेंट लीज रेंटल हो गया है या फिर इनका एलएपी हो गया, डेवलपर फाइनेंसिंग, जो थोड़े से बेटर मार्जिन प्रोडक्ट्स है ना, ये इनका प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहते हैं. मतलब यहाँ से भी इनका मार्जिन और इम्प्रूव होना चाहिए. दिस कंपनी इज द ट्रिपल ए क्रिसिल रेटेड कंपनी. आई थिंक इससे ऊपर कोई होती ही नहीं है. मतलब क्रिसिल रेटिंग इससे ऊपर नहीं, दे आर द सुप्रीम. और इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इट इज द लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री. और यू नो बजाज इज अ बिग होम ग्रोन ब्रांड. कंज्यूमर का बहुत ट्रस्ट है इसके ऊपर. तो जो मैं 5 to 5.5 का मल्टीपल दिया तो इसका जो फेयर वैल्यू निकल रहा है ना, वो 118 से 123 रुपए निकल गया है. मतलब इसका जो रेंज निकल गया था ना लिस्टिंग है इनका, 60 to 75% का निकल जाता है. तो ये अगर अचीव हो जाता है लिस्टिंग के दिन, तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जगह नहीं बचता है. बट कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ द कंपनी, द रोबस्ट ग्रोथ ऑफ द कंपनी, और जिस कॉन्फिडेंस से मैनेजमेंट बात कर रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करना चाहिए. मतलब क्या होगा, इसमें अच्छा लिस्टिंग होगा, फिर ये थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, फिर इसमें वापस एक नॉर्मल. और यू नो बजाज ग्रुप के सारे स्टॉक्स इंडस्ट्री के पी से बहुत हाई चलते हैं. उनको एक प्रीमियम मिलता है मार्केट में, एंड आई फील दिस कंपनी विल गेट दैट प्रीमियम ऑन लिस्टिंग, पोस्ट लिस्टिंग. तो आई फील बड़े लिस्टिंग गेंस के लिए लगाना है इसको, और लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है. मतलब वन ऑफ द बेस्ट आईपीओज आई एम सीइंग एवर. बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, टॉप क्लास. गॉट इट. सो तन्मय, मेरे दो क्वेश्चन है इस पे. आपके पास ब्रेकअप है क्या कि कितना परसेंट जो है वो डायरेक्ट कस्टमर लोन है, कितना परसेंट वो जो अपने डेवलपर फाइनेंसिंग है उसके लिए यूज होता है, और कितना परसेंट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है? उनका ब्रेकअप क्या है, और कंपनी किस तरीके, क्या कुछ गाइडेंस दिया है उनने, कितना ज्यादा बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ? सर पहली बात तो गाइडेंस बजाज ग्रुप कभी नहीं देता, वो तो नहीं है. बट मेरे पास ब्रेकअप है उसका. आई विल गिव दैट, शेयर दैट ब्रेकअप. ओके. इन द मीनवाइल मे बी मैं भी यही सोच रहा था कि सो कंपनी इज ऑलरेडी एट 3.7 पीबी, विच सीम्स हाई. जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि यूजुअली ना जो हाउसिंग फाइनेंस और बैंक्स होते हैं, इनको हम पीबी पे देखते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इनके पास जितना कैश होगा, एसेट होगा, वही वो आगे लोन वगैरह दे पाएंगे उससे, राइट? तो इसलिए पी यूजुअली इज नॉट द बेस्ट मल्टीपल एयर, और हम यूजुअली ना पीबी पे इन कंपनीज को कंपेयर करते हैं. सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ प्राइस पे 3.7 पे आ रहा है, और उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो 3.1 पे है. सो ऑलरेडी एट आईपीओ प्राइस इट इज कमांडिंग लाइक 20% प्रीमियम. और उसके बाद इसमें 50 to 60% ग्रे भी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है. बट तन्मय जस्ट कवर्ड द रीजंस फॉर दैट per se. But yeah, Tanmay, do you have those numbers as of now, or we can move on and come back to this later? हेलो, आई एम ऑडिबल. Yes. मैं डेटा बताता हूँ सर. तो इसका जो प्रोडक्ट वाइज जो सेगमेंटेशन निकल के आ रहा है ना, तो होम लोन इनका 58% है. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एलएपी इज 10.5%, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग इज 19.3%, डेवलपर फाइनेंस इज 10.5% एंड अदर्स इज 2%. तो ये कंपनी ने ना सर एक इंटरव्यू में ऐसा बताया कि हम अगले 2 साल में इन सारी कैटेगरीज को एक ऑप्टिमम लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं. अभी देखा जाए तो ये डेवलपर फाइनेंस इज अ गुड बिजनेस और रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. तो मतलब इसके जो नीम्स भी हो गए, मार्जिन भी हो गए, या फिर जो ग्रोथ का जो केगर इनका जो आई थिंक 31% इन्होंने FY24 में डिलीवर किया, इनका 5 साल का कैगर अराउंड आई थिंक 29.3% है. नाउ जस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा सबको. दिस कंपनी इज जस्ट अ 6 year old कंपनी. 6 साल में 97,000 करोड़ का एयूएम. आई फील दुनिया में कोई बिजनेस बना नहीं आज तक, और ना ही कभी बनेगा. तो ये कंपनी का जो क्वालिटी ऑफ द बिजनेस है ना, और मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एयूएम बढ़ाया है उन्होंने, जो फंडामेंटल के साथ बढ़ाया है, दैट इज. Hey Tanmay, we kind of lost you here, but काफी कुछ कवर हो चुका है. वैसे just wanted to highlight a couple more things from my one being कि
इसकी एंकर बुक आज शाम को आएगी, सो मेक श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंकर बुक। एंकर बुक के लिए आप रजिस्टर, लाइक हम डालेंगे जैसे एंकर बुक आती है, इट वुड बी मच अवेटेड एंड आई एम होपिंग देयर विल बी अ लॉट ऑफ बिग नेम्स एंड उससे भी काफी ज्यादा आइडिया लगेगा कि एंकर बुक कैसी आ रही है कंपनी की। That's one which I wanted to highlight. And then second thing again, we as in when the issue moves forward, we'll also continue to post our read of the company. हम अपनी रीड डालते रहेंगे, so make sure कि आप उसको फॉलो करते रहें. बट या दैट्स आर रीड ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस. मेरे को पता है कि काफी सारा already covered था and people जितना भी आप बोलो people will definitely apply to this issue, but I also wanted to just highlight I know there are quite a few questions with respect to shareholder quota, so अगर आपको कोई भी question है maybe put them in the chat box, मैं एक एक करके ले लेता हूँ. so shareholder quota की मैं एक बार बहुत ही high level पे बता देता हूँ. so कंपनी का जो shareholder quota है वो proportionate basis पे है and up to 2 lakh rupees है. सो बेसिकली आप 2 लाख रुपीस तक ही अप्लाई कर सकते हो इसमें शेयर होल्डर कोटा में. बाकी आपको लाइक अगर उसके ऊपर करोगे तो आपकी एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और उसमें आप 2 एप्लीकेशन बना सकते हो. शेयर होल्डर कोटा इज अ डिफरेंट एप्लीकेशन. सो यूजुअली क्या होता है, आप 2 अगर एक एचएनआई में करो और एक रिटेल में करो तो दोनों एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो जाती है. इस केस में वो नहीं होगा. आप एक एप्लीकेशन यूजुअल अप्लाई कर सकते हो which is whatever you want to do, right? So things like अगर आपको रिटेल करना है, बिग एचएनआई करना है, स्मॉल एचएनआई जो भी करना है वो आप कर सकते हो. और उसके अलावा एक आप सेकंड शेयर होल्डर एप्लीकेशन अलग से भी अप्लाई कर सकते हो. उसमें आप अगर आपके पास बजाज हाउसिंग, बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस किसी का भी शेयर हो ऑन रिकॉर्ड डेट, जिस दिन उनने अपना आरएचपी डाला था उससे एक दिन पहले अगर आपने शेयर लिया हो तो आप एलिजिबल होंगे. और उस इश्यू में अगर आपने वो ले रखा है, वो अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए, तो आप फिर उसके बाद वो जो कंपनी है वो बेसिकली आप ना इट्स अ पोस्टेड बेसिस. तो अगर आप एक लॉट डालोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आधी होगी कंपेयर टू 2 लॉट के. और फिर जैसे जिसने 13 लॉट डालने उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी. सो इफ यू डेफिनेटली वांट सम अलॉटमेंट, गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द 13 लॉट्स इफ यू हैव द काइंड ऑफ मनी टू डू दैट. एंड लाइक as you go lower, but don't apply more than 13 से ऊपर जैसे ही आप करोगे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा. सो दैट्स विथ रिस्पेक्ट टू द शेयर होल्डर कोटा क्वेश्चंस. मैं एक और बात देख रहा हूँ कि और कोई क्वेश्चन है क्या विथ रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर, और वी कैन मूव ऑन पर से फ्रॉम हियर. उसके अलावा कंफर्मेशन ईमेल भी आ रहा है शेयर होल्डर के लिए, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है. सो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू दैट ईमेल एज वेल, यू शुड गेट इट सून. जैसे शेयर होल्डर 13 कोटा प्लस रिटेल आप अप्लाई कर सकते हो, और शेयर होल्डर 13 प्लस एचएनआई भी कर सकते हो, और शेयर होल्डर 13 लॉट प्लस बिग एचएनआई भी कर सकते हो. शेयर होल्डर में आप एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो वैसे कंपैरेटिवली. बट या दैट्स द रीड ऑन शेयर होल्डर कोटा. अब मैं देख रहा हूँ कुछ और क्वेश्चंस हो तो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन फ्रॉम हियर. काफी सारे क्वेश्चंस हैं यार शेयर होल्डर कोटा को लेके. कट ऑफ प्राइस पर टिक करना है, यस करना है. कट ऑफ प्राइस पे टिक. अगर आपको वॉइस में कुछ इश्यू आ रहा है तो फिर ये आप यूट्यूब पे सेम वीडियो जाएगा. सो डेफिनेटली फॉलो द चैनल एंड वहां पे भी आप देख सकते हो. बट दैट्स विथ रिस्पेक्ट टू बजाज हाउसिंग फाइनेंस. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मे बी नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं. सो नेक्स्ट इज अ वेरी स्मॉल मेन बोर्ड इशू, टॉलिंस टायर्स. So Tollins Tires is a 230 CR issue. 230 CR कंपनी रेस कर रही है, एंड एज इज सजेस्टेड फ्रॉम द नेम, कंपनी टायर बनाने का काम करती है, टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग करती है. 200 CR उसका जो है वो फ्रेश इशू है, और 30 CR कंपनी के प्रमोटर के पास जा रहा है, वो कैश आउट कर रहे हैं, OFS है. सो मे बी इसके बाद टॉलिंस भी 11th को ही ओपन हो रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ क्लैश करेगी. बट बहुत ही छोटा इशू है, सो दिस शुड ऑल्सो हैव सफिशिएंट सब्सक्रिप्शन आई फील. बट एक बार रोहित से समझते हैं. रोहित, डू यू वांट टू गो अहेड एंड give your read of this company? Yes, thanks, Manish. So yeah, Tollins Tires is a Kerala-based player in the tire and threading industry. So they make most of their money, which is 75% of their revenue, from tire threading. So the thread is the part of the tire that is in contact with the ground. So you don't have to, like if the tire wears out, you don't have to change the entire tire. You can just retread the tire. And that is where they make most of their business, by actually selling the threading and the things that
the bonding that attaches the treading to the rest of the tire and so on. They make about 25% of their business from the tires itself. And this treading is especially important when you have, heavy duty applications. So off-roading or agriculture, tractors and so on. So that is where this company is focused. So they are also trying to get more into the 2 and 3 wheeler segment as well. This company actually there's one thing which I find very interesting, this company compared to the other sort of tire companies, which is they make very, very niche tires, which they do with their own R&D, their own design. They have their process engineering, the molding, everything happens in-house. The second thing is they are based out of Kerala, which has its good and bad. But in this case, one of the advantages is that most of rubber production in India happens here. I think they're very, very close to the, source of the raw material. And they also that family understands, rubber and rubber pricing very, very well. And the third thing that is part of this is that they've acquired a couple of their promoter group companies. One is a rubber raw material subsidiary, which sort of does a vertical integration. And they have a subsidiary in the UAE, which has very, very low tax base. And they've just combined all three to make up a consolidated entity in FY24. Because of these three things, this company has incredible EBITDA and PAT margins. At least I could not find any other tire company, with this kind of numbers. But I found this somewhat unique, this combination a little unique. Today they operate at a 33% capacity utilization. So they've already spent a lot on capex. They don't need any new capex, at least for the next 3-4 years. They have almost, 5x capacity available, and probably theoretical capacity is almost 3x is available, once you account for a little bit of the extra that you need to give. They acquired an unused SIAT tire factory somewhere in Kerala, which again allowed them to very quickly ramp up capacity. Today they largely sell, in India. I think only 5% is export. But one of the problems for their business was most of their business used to come from Kerala only. That is also something they have changed now in the last year, where I think about 60% of the business comes from outside Kerala, which is again something good. They mostly sell through distributors, which is again something that they're trying to change. They're trying to go more directly to OEMs. There's one discrepancy that I saw in their RHP, which is just on their production to capacity. So or production to sales, where they are producing a lot more tires and treads than they are able to sell. So I don't know if there's an inventory build-up thing. It wasn't there last year. So that is one question which at least I couldn't find an answer to from whatever little bit of information is there. But hopefully as more information comes, we'll try to understand what the reason for that is. Very good numbers. Revenue growth has been good. They did 227 crore last year. This is of course partly because they've gone from a standalone model to a consolidated model. Amazing PAT. 26 crore, just 12.5% of sales. Whatever I've seen, many of these companies operate 5-6% PAT. In fact, I was just thinking that if this kind of PAT growth went from 5% last year to 12.5% in SME, there would have been a big halla about how numbers are, made up and, eyebrows are raised and stuff. But ye to main board hai, so sab theek hai, I guess. One good thing is they are reducing 85 crore of debt. So they will be a debt-free company at the end of this. That will also help them save 6-7 crore of bottom line. You can say that their PAT 26 crore is equivalent to almost 32-33 crore, if you account them to have been a debt-free company. Company is also projecting decent growth, sort of steady growth, 25-30% based on their working capital calculations, and very, very good, ROE, ROC, and so on. So on all metrics, this company is actually very, very good compared to whatever peers I have seen. Probably somebody like an Indag Rubber is the closest peer, where they do a lot of their business in trading of tires. So today, this company is coming at 34p. It's not cheap, but I don't think it is that expensive either. They will be a debt-free company. This whole sector was re-rated, when last year when there was a drop in petroleum and rubber prices. And like Indag trades at 50p, 51p. There are other peers who trade at really, really high multiples. So I actually feel there is something left on the table. The company is solid. There are a couple of risks, but by and large, the company is not bad. The main problem is it's going to be a very, very small, it's just a 220 crore issue or 230 crore issue. So there is a chance because it is clashing with 4 other main boards to actually get an allotment here. I saw the GMP is also not that high. So
I actually find this company quite interesting. I think there can be some decent listing gain also. But we'll probably get a better idea. Let's see who the anchors are and let's see how the subscriptions run at the end, because it's a very small size. At the end, it can run up a lot. So better to keep track of that from an application perspective. But I found otherwise this company is good and worth applying, and I think there can be some listing gain as well. परफेक्ट, थैंक यू रोहित फॉर योर रिव्यू। अभी हम टॉलिंस टायर्स की बात कर रहे थे। सर, मैं डू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन टॉलिंस? यस, मतलब ना मुझे एक्चुअली एक दो सवाल थे यार। मतलब इंटरव्यू में मैनेजमेंट ने एक्चुअली एक डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ, कैपेसिटी एक्सपांशन और एफिशिएंसीज की बात करी, बट ही सेड वन थिंग दैट वी आर कंफर्टेबल बिटवीन 18 to 20% मार्जिन। मतलब वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से मार्जिन एक्सपांशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो मतलब आई फील कि नाउ दिस इज जस्ट अ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस। मतलब वो जितना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उतना ही इनकी एफिशिएंसीज पैट लेवल पे आएगी, बट एबिटा लेवल पे यहाँ से एफिशिएंसीज आना थोड़ा मुश्किल होगा। सेकंड थिंग यार, इनका एलएम देखा मैंने। मतलब इनका एलएम है सैफ्रॉन, और इनका जो लास्ट आईपीओ था ना वो था उदय शिव कुमार इंफ्रा। 70% का प्रीमियम था, -20% की लिस्टिंग थी। आई होप दे टर्न दी ट्रैक रिकॉर्ड दिस टाइम। Nothing to add, Manish. I think valid points. LM का honestly मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ, because we've seen कुछ भी हो सकता है. We've seen Hem do very badly. We've seen FedEx suddenly start giving listing gains. But the other point is also valid that the margin का expansion यहाँ से बहुत मुश्किल होगा. So it will be mostly debt reduction that will improve margins next year. After that, there's not a lot of scale benefit of margins anymore because they are at peak margins. And I'll add one more thing interesting. मतलब I feel it's an achievement and not an point to the company. This is Kerala's first IPO in last 17 years after V-Guard Industries. तो मतलब आई फील अच्छा हो रहा है कि केरला से भी कंपनी आ रही है। बट मतलब ऑनेस्टली कोई पूछेगा कि क्यों नहीं आती, तो इसका रीजन ऐसा है ना कि पॉलिसीज एंड दी मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो मतलब दिस इज अचीवमेंट फॉर द कंपनी कि यार आप केरला से आके Tanmay, wasn't Popular Vehicles was also from Kerala, no? Popular Vehicles. नो, बट इट्स अ चेन्नई बेस्ड, आई थिंक चेन्नई बेस्ड कंपनी। अच्छा, ओके। वी-गार्ड के बाद ये पहला आईपीओ आ रहा है 16 के 17 सालों में। Perfect. So that's our review of Tollins. Thank you so much, Tanmay. Thank you, Rohit, for adding a few points. मैंने रोहित को शायद पहली बार इतनी हिंदी बोलते हुए देखा है, so I'm very happy today कि रोहित भी हिंदी बोल रहा है. But having said that, maybe that completes Tollins. I would want to highlight two things here. दो चीजें मैं बता दूं. So Tollins के साथ एक और इशू है, क्रॉस जो 11th को आ रहा है, और उसके बाद एक पीएन कार्ड के लिए जो 12th को आ रहा है. So ये पांचों जो कंपनीज हैं, श्री तिरुपति बालाजी अलग है, वो हो गई. उसके अलावा जो ये चार कंपनी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टॉलिंस, क्रॉस और पीएन गार्ड के लिए, चारों एक साथ हैं. आप इसमें मनी रोटेट नहीं कर सकते. सो मेक श्योर कि आप जो नेक्स्ट स्पेस है उसको भी सुने, अंडरस्टैंड क्रॉस क्या करता है, पीएन गार्ड क्या करता है, और उसके हिसाब से अपना डिसीजन बनाए. आज हमने बजाज और टॉलिंस कवर किए ऑन द मेन बोर्ड साइड, एंड इसके बाद हम अब एसएमई की तरफ चलते हैं. आई अंडरस्टैंड हमारे पैनल पे एक नया बंदा है, यश इज हियर, सो मे बी we'll start with Yash, and Yash, if you could speak about Vision Infra. आपने Vision Infra पढ़ी है, right? I'll just set it up for you. 106 करोड़ का इशू है, काफी बड़ा एसएमई इशू है कंपैरेटिवली, और कंपनी जो है वो जो हैवी इक्विपमेंट होता है, जो अपने को रोड वगैरह बनाते हैं उसके लिए जो डंपर वगैरह होते हैं उनको रेंट करता है, उनको रिफर्बिश करता है, उसकी कंपनी है. सो मे बी यश, डू यू वांट टू स्पीक एंड explain the company? What is your view on it? And also, this is the first time Yash is on this panel, so welcome, Yash. Yeah, sure. Thank you, Manish, for adding me to the panel. Very excited for this initiative that you have taken, and it's a very good initiative that we are discussing so many SME companies, so many main board companies with the expertise of you, Rohit Bhai and Tanmay Bhai. So I'll start with Vision Infra. So Vision Infra is working in equipment. Yes, एक और रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा हिंदी पॉसिबल इन बिटवीन, है ना? Like whenever you can, whatever you're comfortable with. Yeah, sure. So Vision Infra is working in equipment space. They are providing rental services to these road infrastructure companies, airports, railways, etc., etc. So basically, they are into two segments. उनका
दो सेगमेंट में टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन होता है. द फर्स्ट वन इज देयर रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसमें दे लीज आउट, they rent out their equipments based on two different criteria, or I would say two different fee structure. One would be time based fee, which is fixed on basis of कि मैं कितना टाइम एक इक्विपमेंट को या एक उनके मशीनरी को यूज कर रहा हूँ. द अदर वन इज आउटपुट बेस्ड, जिसमें दे विल डिप्लॉय देयर इक्विपमेंट एंड मैन पावर, जो कि खुद ही उसको रन करेंगे, एंड देन आउटपुट देखेंगे कि हमने कितना आउटपुट निकाला है उनको यूज करके, एंड बेस्ड ऑन दैट विल चार्ज देम फीस. The other one is, the other part of their revenue is trading of refurbished equipment, in which they purchased used equipment जो उनको पुरानी infrastructure company से, contractors से, banks, retail markets से, इन सब से मिल जाता है. Usually उनका प्रेफरेंस रहता है कि जिनसे भी वो ये इक्विपमेंट्स प्रिक्योर करते हैं, उनका एवरेज लाइफ क्लोज टू 500-600 आवर्स तक रहे, एंड 5 to 6 years से लेस हो, जिससे कि व्हेन दे रिफर्बिश इट एंड दे रेंट आउट, तो उसका एफिशिएंसी कम ना हो, एंड इट्स ऑलमोस्ट मैच विद द ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशन जिसमें वो बेचते हैं. तो पहले हाउ दे यूज टू डू इज, वो पहले रिफर्बिश खुद करते थे अपना इन हाउस थ्रू देयर जॉब वर्क एंड ऑल, बट करंटली नाउ दे आर आउटसोर्सिंग द रिफर्बिशमेंट एक्टिविटीज. रिसेंटली कंपनी ने एक अपना रिफर्बिशमेंट का यूनिट भी प्लान करा है, जिसमें उन्होंने लीव एंड लीज लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है फॉर 5 years. तो फ्यू ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं जो विजन इंफ्रा ने कंप्लीट किया है, सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. आई विल ओनली टॉक अबाउट द मेन एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच आई रेड. सो one of them is Hyderabad International Airport, Indira Gandhi International Airport, then Sardar Vallabhbhai International Airport. In defense, they have Bhuj Defense Airport. In railways, there is High Speed Rail Project, Ahmedabad to Mumbai. Then there is Varsha Project, Indian Navy, and there is NDA Pune. So these are few projects that they have done. They have done many projects, and they have many long-term partnership. For example, like L&T, they have a very strong partnership in L&T, and I think the management is super confident in maintaining their relationships with their clients. As of now, as of June 15th, the order book stands at 133 crores, and recently they have made investment in Equipment Hub with a partnership of 95% profit sharing, with the motive to export their sales and expand their top line. Moreover, the company, with the issue of 106 crore, the company will procure new machines worth of around, I think, 46 crores. And the rest part will be split into working capital, which will be 36 crores, and the rest will be general corporate purposes. The company has also shown significant improvement in its financial performance. I think the company has grown its EBITDA from, if I talk about from 2022 to 2024, they have grown their EBITDA from at a rate of 50-55%, and significantly they have grown their bottom line as well. I think it's close to 65-70% in the bottom line in these 2 years. Currently their EBITDA stands at 24%, and I think this is the best EBITDA in past these years which they have reported. Also, I would like to highlight that they will be adding 26 new machines to their fleet. As of now, they have 395, but they will be adding 26 new fleets, which they can procure till December current year. So if we talk about the balance sheet of the company, काफी cash फंसा हुआ है balance sheet में. I think 265 crores का debt है, जिसमें से company का long term debt is 180 crores and 84 crores is short term debt. Then इसमें भी 52 crores is unsecured loan from the promoters. तो बेसिकली ये डेट ज्यादा ही लगेगा बिकॉज द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, की बहुत ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है इसमें. अभी बैलेंस शीट इतना काफी हाईली लेवर्ड है एट करंट डेट लेवल्स ऑल्सो. आई थिंक given the inka even okay, so they also have debt of this 284 crores, then plus they are taking equity funding of 36 crores from this raise for their working capital requirement.
तो वर्किंग कैपिटल में भी दे आर एक्सपैंडिंग, तो टोटल उनका फॉर FY25 व्हाट दे हैव प्रोजेक्टेड इज अराउंड 120 करोड़ ऑफ वर्किंग कैपिटल विच दे नीड, क्योंकि नया नया फ्लीट्स भी ऐड होगा, 21 नए फ्लीट्स ऐड होंगे, तो उसमें भी वर्किंग कैपिटल लगेगा। प्लस इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है that has also that will also go up. I think currently now for FY25 it would be around 120-130 days, and तो मोटा मोटी for FY25 I think they are very well poised to put 330-360 crores of top line, and I think margins, they would be better margins because इनका gross margin profile has increased very well. तो आई थिंक बॉटम लाइन में भी 30-36 करोड़ ऑफ पैट हम देख सकते हैं। तो FY25 पे भी 12-11 के पी पे कंपनी मिल रहा है। गॉट इट। सो यश, एक दो क्वेश्चन थे मेरे। हम विजन इंफ्रा की बात कर रहे हैं, बाय द वे, समवन इज जॉइंड लेट। एक दो वही क्विक क्वेश्चन थे। मैं देख रहा था कंपनी के पास बहुत बड़ा डेप्थ है, डेप्थ टू इक्विटी अराउंड 5 के ऊपर है। सो उस पे आपका क्या थॉट है, एंड आगे कंपनी आई थिंक कंपनी को मतलब डेट तो बहुत ज्यादा है कंपनी पे, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री ऐसा है कि वो चाहिए, उन्हें डेट ज्यादा चाहिए। इवन दे नीड मोर इक्विटी या फिर डेट। तो अभी इनका डेट ज्यादा है, तो आई थिंक नेक्स्ट राउंड भी दे नीड टू रेज मोर फंड्स, क्योंकि नहीं तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। मतलब आई थिंक अभी ये जो भी रेस कर रहे हैं इसके मैक्स टू मैक्स FY25 के बाद एक और फंड रेस दे नीड एंड मोर डाइल्यूशन होगा। करंटली भी 70% उनका है प्रमोटर्स के पास आफ्टर दिस इशू, बट आई थिंक मोर डाइल्यूशन विल बी देयर। तो आई थिंक उस समय डेट टू इक्विटी विल कम डाउन, बट ओवरऑल डेट का कॉस्ट भी आई थिंक इज अराउंड क्लोज टू 9-11% डिफरेंट डेट्स है, एंड मोस्ट ऑफ द डेट इज हाइपोथेशियन। सो बेसिकली वो जो फ्लीट लिया उन्होंने उसको ही कोलैटरल बना के डेट ले रखा है। इस वाली लास्ट वाली पॉइंट को एक और बार समझाएंगे? सो अगर उनने, लाइक, कैन यू रिपीट द लास्ट पॉइंट? जो उन्होंने डेट लिया है ना, उनका जो इंटरेस्ट रेट है आई थिंक इट्स अराउंड 9-11% पे वो फ्लक्चुएट कर रहा है फॉर डिफरेंट डेट्स, एंड जो डेट टाइप है दैट इज हाइपोथेशियन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेट इशू होता है, तो इनका हाइपोथेशियन है विच इज बेसिकली टाइप ऑफ कोलैटरल जो इशू करा जाता है आपको अगेंस्ट आपके इक्विपमेंट के। इसमें समझ गया। ओके। सो ओवरऑल आपकी क्या रेट बन रही है, लाइक फ्रॉम व्हाट लिमिटेड यू FY25 पे तो कंपनी अगर 90% नहीं खुलता है तो इट्स अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म, बट डाइल्यूशन विल बी देयर इन फ्यूचर, तो वो देख के वी शुड टेक अ डिसीजन। गॉट इट। मैं इसमें एक दो चीजें ऐड करूंगा बस। इसमें काफी इन्वेस्टर जो आए थे, आई नो यू शुडंट बी फॉलोइंग HNI इन्वेस्टर्स, बट कंपैरेटिवली अच्छे फंड्स ने इसमें जो प्री IPO प्लेसमेंट था उसमें बड़े नाम थे, एंड उसके बाद जो अभी कंपनी ने रेस किया है एंकर, उसमें भी कंपैरेटिवली अच्छे नाम थे। मैं देख रहा था सुनील सिंघानिया वाज देयर, एंड देन मधु केला वाज देयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, Yeah, yes, so correct, so correct. a couple of good names in this company. So there should be enough interest in this industry is what I feel. Uh, Yes, it's a very good रेलवे प्रॉक्सी, बिकॉज अभी बजट वगैरह में भी 33-35% रेलवे में, रेलवे आई एम सेइंग रोड इंफ्रा में काफी पुश हुआ है, तो इट्स अ वेरी गुड रोड प्रॉक्सी। द अदर लिस्टेड पेयर्स तो कोई है नहीं, क्योंकि क्राउन लिफ्टर्स एंड ऑल आर इनटू क्रेन्स एंड ऑल, तो आई थिंक इट्स अ गुड वन टू प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉक्सी। Yes, what is the reason for the lack of growth? The last like FY23 से FY25 तक the revenue will be mota same, no? Yeah, revenue is more or less same. I think their profit margins has gone up mostly because of their raw material cost has gone down, and I think major growth नहीं आया because उन्होंने फंड रेज नहीं किया, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये वाला, एंड फंड्स का बहुत जरूरत है, एंड ऑब्वियस मतलब इतना ज्यादा डेट ऑलरेडी है बैलेंस शीट में, तो मोस्टली आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ कि they do not have much cash to buy new equipments and all. Got it. Mostly it's like कि पर इक्विपमेंट भी काइंड ऑफ, इसको अगर मैं समझना चाहूँ तो वॉल्यूम की तरह समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा टॉप लाइन आएगा उतना ज्यादा बॉटम लाइन आएगा, क्योंकि मार्जिन तो अब इनके सस्टेन कर सकते हैं दिस लेवल पे। Got it.
Tanmay, do you have anything to add, or we can move on in the interest of time to the next issue? एवरीथिंग इज प्रिटी वेल कवर्ड. मेरे भी वही डाउट्स थे कि यार डेट का क्या है और Okay, so maybe with that we will move on. एक अब शुभश्री करके शुभश्री बायोफ्यूल्स करके एक कंपनी आ रही है. थैंक्स यश फॉर स्पीकिंग अबाउट विजन इंफ्रा. शुभश्री बायोफ्यूल्स की बात करते हैं. एक छोटा सा इशू है, 16 CR का इशू है, और कंपनी जो है वो बायोफ्यूल मासेस वगैरह जो है वो सप्लाई करती है. सो रोहित, डू यू वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट शुभश्री? Yes. So I'll not spend a lot of time on this company. It's a pretty small business. So they're a biofuel trading and manufacturing business, but majority of the business is actually just trading right now. They make these pellets and these briquettes, which are the small, like very transportable pieces of fuel made from sawdust, mustard, peanut scrap, basically a lot of different kinds of agri scrap. This is then clean processed. The raw materials are collected and put into one, just you can assume, one giant machine that converts the waste into this easily transportable and usable form. Most of their business actually is from trading. They only just started manufacturing in the last 6 months. They bought one machine and they rented 2 more. And in the last 6 months, if you see, 20% of their business is from manufacturing of these pellets. It shows in their margins also. It's a very thin margin business right now. They are, just operating at 3.5% PAT on a blended level. So until they get into more manufacturing, the margins will not really go anywhere. They also have very, very high customer concentration, where a single customer makes up almost 40% of their sales. They're raising this money to set up that capex to get more into manufacturing. They're not, in fact, the RHP doesn't specify how much the capex will increase by, but roughly, I tried to calculate, it looked like on a net block basis, if you see their current net block, that net block will increase by 3x, and they rent 2 of their machines and own one. So I think mota, the capacity should improve by 70 to 80%. Their numbers are reasonable. They've done 94 crore revenue, growing 50% year on year from last year. If you see that working capital, they're projecting another 50% next year. But again, margins are thin, so you'll have to assume that if their manufacturing setup comes up, it's actually not very complex. It's just you have to get a big machine, you need some space, and you need to set it up. So it's not something that will take a lot of time. But it is dependent on how much they can increase their manufacturing as a percentage of their overall sales. They're raising a very small amount, 16 crore. It will come with QIB and anchor. Normally this size, you rarely see QIB anchor. You normally just see a fixed price issue. So allotment will be very hard, both in, retail and in HNI quota. It will be very, very small. The company is coming at an 18p. One thing that sort of comes to mind immediately is, can you compare this to somebody like a Kotiark, which is a very well-known company in the biofuel space, but they actually make biodiesel, which is a far more complicated product, much more complex manufacturing process, and they have their own sort of proprietary process, whereas what Shubhshri is doing is very basic. At least from what I could understand, it was very, very simple, and there's no real moat. Anyone can start this business. So I'm personally not very excited about this. There will also be a lot of clashing IPOs. So I will mostly give this a skip. It is a HEM IPO, so HEM Securities means the company will not be bad. They would have done their diligence. So it should be okay. Whether it'll be a listing gain or not, I'm not really expecting any fireworks from this company. So yeah, that is my read. I think it's a okay company. Nothing bad, nothing great. Perfect. मेरी भी almost similar read थी. At a very high level, it looked a very, very decent issue and probably could have been skipped. There are better issues, so उसके बारे में भी बात करेंगे. Okay. So let's move on. Maybe in the interest of time, let's move on. एक लास्ट कंपनी की बात करते हैं आज, जो कि आदित्य अल्ट्रा स्टील है. So ये सेवेंथ कंपनी है जो हम आज कवर कर रहे हैं, आदित्य अल्ट्रा स्टील. बट हैविंग सेड दैट, ये भी जो है वो 11 सितंबर को ही क्लोज हो रही है. सो अगर मैं आपको बहुत ही रफ आइडिया दे दूं, तो 11 सितंबर को टोटल 4 कंपनियां क्लोज हो रही हैं और 12 सितंबर को 2 कंपनियां क्लोज हो रही हैं. तो टोटल 6 एसएमई कंपनीज का रिव्यू है. एक हमने रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है. 10 सितंबर को विजन इंफ्रा हो रही है, जो हमने रिव्यू कर दिया है. 11th को हमने शुभश्री कर लिया, आदित्य अल्ट्रा कर लिया. बाकी जो है वो हम बाकी नेक्स्ट पेज में करेंगे. सो डेफिनेटली फील फ्री टू प्लीज डू फॉलो ऑल 4 ऑफ अस एंड ऑल्सो फॉलो द यूट्यूब चैनल. उस पर मैं ये जो है ये कमेंट ये जो स्पेस है वो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा. हैविंग सेड दैट, आदित्य अल्ट्रा स्टील की तरफ चलते हैं. सो कंपनी जो है वो टीएमटी बार्स, टीएमटी सरिये जो होती है वो बनाती है अंडर द ब्रांड नेम कामधेनु. कंपनी अभी 45 CR रेस करने की कोशिश कर रही है. ऑल
फ्रेश इशू है और कंपनी जो है वो 150 सीआर का मार्केट कैप पे आ रही है। सो 150 सीआर के मार्केट कैप पे कंपनी 45 सीआर रेस कर रही है। सो प्रमोटर्स के बाद 68% रह जाएगा आफ्टर आईपीओ। सो अगर मैं बात करूं कंपनी करती क्या है, तो जैसे मैंने बताया कंपनी जो टीएमटी बास होते हैं जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगते हैं, उनको बनाती है और ये कामधेनु ब्रांड के अंदर बनाती है। सो कामधेनु ये कंपनी नहीं है, उनने कामधेनु से अपना नाम यूज करने का लाइक कामधेनु नाम यूज करके टीएमटी बार, बिकॉज टीएमटी बार एंड ऑफ द डे काफी कमोडिटी प्रोडक्ट है, राइट। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, तुम बिलेट्स होते हो, बिलेट्स को हीट करते हो और उसको बास में कन्वर्ट, बिलेट्स को उठाते हो और उनको रोल्ड स्टील टीएमटी में कन्वर्ट करते हो। सो इस प्रोसेस को कोई भी कर सकता है, राइट। सो इसमें मेजरली जो है वो ब्रांड प्ले है। सो ब्रांड वो कामधेनु का यूज करते हैं और उसके लिए वो रॉयल्टी भी देते हैं कामधेनु को। मैं पढ़ रहा था कुछ 300 रुपए पर टन के हिसाब से, पर महीने के हिसाब से वो रॉयल्टी देते हैं कामधेनु को। सो बिजनेस इन इटसेल्फ इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द ब्रांड दैट दे आर यूजिंग। इनका खुद का कोई ब्रांड नहीं है, कंपनी जो है वो इस कंपनी का यूज करती है ब्रांड नेम। और उसके अलावा कंपनी जो है मोस्ट ऑफ इट्स सेल्स इज कमिंग फ्रॉम गुजरात, क्योंकि अगेन लाइक इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप। सो इसकी एक और पेरेंट कंपनी, सो अगर आप देखोगे तो 98.5% ऑफ बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम गुजरात इनफैक्ट। और उसमें भी ये आधा गुजरात कवर करते हैं, क्योंकि आधा जो गुजरात है वो दूसरी एक इनकी ग्रुप कंपनी है वो कवर करती है। और इनका एग्रीमेंट साइंड है कि यहाँ पे तू कामधेनु बेचेगा, यहाँ पे मैं कामधेनु बेचूंगा। सो इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी स्मॉल नीश बिजनेस और इसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली कंस्ट्रेंट लगी मेरे को। और वो इस भी बात से प्रूव होता है कि कंपनी ना फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है पिछले 3 साल से। तो अगर आप कंपनी देखोगे तो कंपनी के पास लगभग 108 मेट्रिक टन, 1 लाख मेट्रिक टन टाइप का, 1.08 लाख मेट्रिक टन टाइप की कैपेसिटी है, जिसमें से यूजेबल कैपेसिटी अराउंड 86% है और वो पिछले 3 साल से उस पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो कैपेसिटी ऑलरेडी यूज्ड है कंपनी की। इनफैक्ट पिछले साल तो उनकी कैपेसिटी इतनी यूज थी कि वो एक्सटर्नल वेंडर्स को अपना लाइक प्रोडक्शन करवा के फिर उसको बेचते हैं। तो जैसे इनने महेश्वर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी है, उसको अपना ये टीएमटी बना के कामधेनु सरिया के नाम से बना के देने के लिए किया था और फिर उसको आगे बेचते हैं। सो कंपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है और मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज फ्रॉम गुजरात से ही आता है। 98.5% बिजनेस जैसे मैंने बोला गुजरात से आता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी आप बेसिकली फंड उठाना, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, और बाय द वे एक और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फाइनेंशियल्स में ना, कंपनी ने ना एक बार 2018 में भी लिस्टिंग की कोशिश की हुई है। लिस्टिंग का आप देखोगे बीएसई पे डीआरएचपी पड़ा हुआ है 2018 में भी, फिर वो नहीं लिस्ट हुए थे, तो फिर उसके बाद अभी 2024 का डीआरएचपी है। सो अच्छी ग्रोथ कंपैरेटिवली का ऑप्शन, मतलब आपको लॉन्गर जर्नी मिल जाती है ऑफ द फाइनेंशियल्स। सो कंपनी 2018 में अराउंड 145 सीआर करती थी और अब और उसके बाद वो धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। सो 2022 में देखोगे आप तो अराउंड कंपनी ने 515 करोड़ किया है, 23 में 530 करोड़ किया है और 24 में 587 सीआर किया है। तो वो काफी फ्लैट है, कंस्ट्रेंट है ग्रोथ कंपैरेटिवली, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, तो उससे ज्यादा कैपेसिटी है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। सो बट अभी उनने दूसरी जगह आईपीओ लाना है, इसलिए दूसरी जगह किसी को अपना माल बनाने के लिए दिया है और उससे रेवेन्यू उनका कंपैरेटिवली थोड़ा सा बढ़ा है। और अगर मैं बात करूं कंपनी का पैट जो है, तो पैट बहुत कम है। पैट अराउंड 0.7% का मार्जिन है कंपनी को। लाइक 8 करोड़ कंपनी ने कमाए हैं 587 करोड़ की सेल्स पे, विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज एंड ऑफ द डे तुम एक कमोडिटी धंधा कर रहे हो, किसी और के ब्रांड नेम को बना रहे हो। और पिछली बार का अगर आप देखोगे तो पिछली बार तो पैट बहुत ही कम था। पिछली बार अराउंड 0.5%, 2.5 करोड़ कंपनी ने कमाया था FY23 में, जो कि अब इंक्रीज होके अराउंड 8 सीआर हो गया है। और मैं जब पढ़ रहा था ना, तो कंपनी ने बताया कि FY23 में क्या हुआ था कि कोल प्राइस ज्यादा महंगा था और कमोडिटी मार्केट भी वोलेटाइल था, इसलिए हमारा पैट मार्जिन कम था। बट ये फिर रिस्क हमेशा रहेगी, राइट। ऑल्दो कंपनी सेइंग कि अब वो कंडीशंस आर बिहाइंड अस, बट फिर वो वापस भी आ सकती है, राइट। सो बिकॉज ऑफ विच अगेन इट डजंट मेक सेंस, लाइक इट्स अ लिमिटेड प्ले। अब मैं बात करूं कि कंपनी क्यों आईपीओ ला रही है, तो वही क्लियरली उनको अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करनी है, कैपेक्स करना है उनको। अब कैपेक्स आइडियली कहाँ करना चाहिए? मेरे हिसाब से कैपेक्स करना चाहिए, अगर तुम्हारी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, तुम टीएमटी बार नहीं बना पा रहे हो, तो तुम्हें टीएमटी बार बनाना चाहिए। बट कंपनी जो है वो सोलर पैनल लगा रही है, क्योंकि उनको बिजली बचानी है। सो प्रोबेबली हो सकता है इसको थोड़ा सा सोलर वाला फील देने की कोशिश की गई है, बट सोलर पैनल तो उनके लिए कैप्टिव यूज के लिए है। सो लाइक आई वुड हैव बीन अ लॉट मोर हैप्पियर और प्रोबेबली इट वुड हैव मेड मोर सेंस कि अगर कंपनी जो है वो अपनी कैपेसिटी
क्योंकि ऑलरेडी किसी बाहर से किसी से प्रोड्यूस करा रही है, तो कंपनी बोलती कि हम खुद से और बनाएंगे माल पर से। बट ऐसा नहीं है, कंपनी ने बोला है कि हम सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर प्लांट लगा के उससे बिजली का खर्चा बचेगा हमारा। सो ऐसा लगता है मेरे को कि थोड़ा बहुत सोलर रनिंग थीम है तो उसको यूज करने की कोशिश की गई है। बट 15 करोड़, ये मैं आदित्य अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ, 15 करोड़ कंपनी इसलिए रेस कर रही है, और उसके अलावा कंपनी 12-13 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए रेस कर रही है। अब वही क्विकली मैं अगर बात करूं कि कंपनी किस पीई पे आ रही है, सो कंपनी जो है वो मोटा मोटा अराउंड 8 CR कमाई थी। सो 8 CR और के हिसाब से अगर आप देखोगे, कंपनी 20 पीई पे आ रही है, 19.44 पीई पे आ रही है एट 153 वैल्यू, 153 CR का मार्केट कैप। तो उस हिसाब से काफी। और अगर आप इसके पीएस देखोगे, सो कंपनी ने जो अपने पीएस दिखाए, राठी बास, मंगलम वर्ल्ड वाइड, ये भी 19 के पीई पे, 16 के पीई पे ऐसे ट्रेड कर रहे हैं। सो कंपैरेटिवली आई डोंट फील देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द टेबल, एंड एंड ऑफ द डे इट इज अ कमोडिटी बिजनेस, वेरी नॉन डिफरेंशिएटेड है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं कंपैरेटिवली। सो आई विल नॉट बी अप्लाइंग टू दिस इशू एंड आई विल बी फोकसिंग ऑन अदर इश्यूज। एक और बात, जो लास्ट चीज स्वस्तिका का इशू है, स्वस्तिका इज अ रेदर average LM as of date, so that's one thing other to keep in mind as well. But that's very high level read of Aditya Ultra that we have covered till now. Anyone of you three has anything to read, add on Aditya Ultra? Although I understand कि आपने अभी comparatively इतनी कंपनी पढ़ी भी नहीं होगी और स्किप भी मार सकते हो अगर आप मेरे से मेरा कैंडिड ओपिनियन पूछो तो। But with that, we kind of covered the 7 companies. Up, we'll take a few questions. I understand काफी सारे questions होंगे with respect to Bajaj Housing Finance. So if anyone has any questions, feel free to post them in the comments and हम वो लेंगे. And then we can close in the next 2-3 minutes. और तन्मय, रोहित, you have anything to add on any of the issues? Yes, you have anything to add? I think Manish bhai, one another perspective about this solar panel installation पे मैं एक बोलना चाहूंगा कि आई रिमेम्बर एक दूसरा कंपनी था जिसने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके छत पे सोलर पैनल लगवा लिए थे। तो यूजुअली उसका मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये जो कंपनी डिस्कस किया हमने इसका क्या पर्पस था, बट उसका पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ। तो प्रमोटर वाज सो कॉन्फिडेंट कि अरे मेरे जो छत पे पैनल लगा हुआ है, मेरा 90% तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल वहीं से आ जाएगा, तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करेगा, फिक्स्ड कॉस्ट में कम कर दे रहा हूँ, फुल कैपेसिटी प्लांट चलाऊंगा तो इतना खर्चा निकल रहा है, इतने खर्चे का तो मैं यहाँ से सोलर से बिजली निकाल लूंगा। तो आई थिंक एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि समटाइम्स दे प्ले स्मार्ट बाय एलिमिनेटिंग देयर कॉस्ट। हाँ, सेम रीजन लिखा हुआ है कंपनी ने कि हमें अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करना है। बट मेरा क्वेश्चन वही था कि यार तुम्हारी कैपेसिटी अभी ऑलरेडी फुल यूज है 3 साल से, और तुम बाहर माल भेज रहे हो बनने के लिए, सिर्फ बेचने के लिए, तो तुम कैपेसिटी बढ़ा दो ना। लाइक आई वुड रेदर इंक्रीज कैपेसिटी देन टू रिड्यूस माय कॉस्ट, राइट? इज व्हाट माय पॉइंट वाज। But yeah, that's pretty much it in terms of the issue from our side. I'm just going through the questions. अगर आप पे कोई भी question हो तो definitely post them. और हो सके तो आप ना जब आप question डाल रहे हो तो उस इशू के बारे में भी डालिएगा। आई एम सीइंग अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग इन दिस सेक्टर, बट मेरे को भी पता नहीं है किस सेक्टर की बात हो रही है। सो इफ यू कैन डू दैट, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। बट हैविंग सेड दैट, आई विल काइंड ऑफ क्लोज दिस इशू राइट नाउ विद सेइंग अ फ्यू थिंग्स। हमने आज 7 कंपनीज की बात कर ली। आई विल काइंड ऑफ रिपीट, जो 4 मेन बोर्ड इश्यूज एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं वो 11th और 12th को क्लोज होंगे। मेनली दोज आर द इश्यूज विच यू नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट। एक तो अपना बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, टॉलिंस टायर्स दूसरा है, तीसरा क्रॉस लिमिटेड है, चौथा पीएन गाडगिल है। 3 11th को कंप्लीट हो रहे हैं और पीएन गाडगिल 12th को हो रहा है। पीएन गाडगिल इज अ वेरी वेरी गुड कंपनी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, उसको भी कवर करेंगे। बट डेफिनेटली ट्राई एंड मेक श्योर कि यू स्पेंड अटेंड द नेक्स्ट फेज सो दैट यू कैन लिसन टू इट। एंड उसके अलावा अगर मैं एसएमईज की बात करूं तो एसएमईज में मैं काउंट भी भूल जाता हूँ। आई थिंक 9 एसएमईज आर क्लोजिंग। हमने आज 3 एसएमईज की बात की। 10th को क्लोज हो रही है विजन इंफ्रा, 11th को हमने शुभश्री और आदित्य अल्ट्रा बात कर ली। उसके अलावा शेयर समाधान, गजानन इंटरनेशनल, ट्रैफिक सॉल्व भी क्लोज हो रही है। 12th को एसपीपी पॉलीमर क्लोज हो रही है, इनोमेट क्लोज हो रही है, एक्सीलेंट वायर्स क्लोज हो रही है। सो उनकी भी बात करेंगे इन द नेक्स्ट set of companies that we cover on this second part of this space. So definitely tune in for that as well. I will put this on YouTube as well. So if you have missed any company, go ahead and follow the YouTube channel so that you can kind of understand with respect to that as well, and listen to these companies at your own
pace. But yeah, that's pretty much it from our side. Thank you so much for guys for joining today. I understand slightly off time, but we'll get better at it. Thank you. Bye. Hello. Am I audible? Yeah, Tanmay, you are. हाँ, आई विल जस्ट ऐड वन थिंग कि ये जो श्री तिरुपति है ना, ये 9 तारीख को क्लोज हो रहा है. ओके, तो इसका जो अनब्लॉक आएगा वो 11 तारीख को आएगा मॉर्निंग आफ्टरनून में. बट जो बहुत सेफ खेलते हैं और जिनको रिस्क नहीं लेना, तो उन्होंने अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बजाज हाउसिंग क्लोज होने, मतलब जिनके पास 1 या 2 आईपीओ के फंड से उनकी बात कर रहा हूँ, तब तक उनका पैसा अनब्लॉक अगर नहीं हुआ तो यू माइट मिस द आईपीओ. तो आप वो माइंडसेट के साथ ही श्री तिरुपति में अप्लाई कीजिए कि अगर मिस हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई हैव एडिशनल फंड्स. ओके. या दैट्स अ गुड पॉइंट तन्मय. सो अगर मैंने यूजुअली देखा है कि कुछ कुछ बैंक्स ज्यादा टाइम लगाते हैं, कुछ बैंक्स कम टाइम लगाती हैं. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज गुड बैंक पीपल जो यूजुअली अनब्लॉक टाइम्स हो जाता है, तो आप कर सकते हो. बट हैविंग सेड दैट, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. एलएम की तरफ से अगर अनब्लॉकिंग में लेट हो गया तो वो भी एक रिस्क रहता है. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल. Thank you so much guys for joining. We will see you in the second part. Thank you.